So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, verse number 43. Krishne Sodham Upagate Dharma Jnanadibhi Saha Kalo Nashti Drishameva Purano Kordhunoditah. क्या बता रहे हैं कि दिस भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम की बात हो रही है, ठीक है. दिस भागवत पुराण is as brilliant as sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. है ना. तो श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, एक टॉर्च लाइट की जैसे है ना. तो सन तो चला गया है ना, सन चला गया, सारी रोशनी गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि, तो भगवान ने क्या बोला, अच्छा ठीक है एक काम करो टॉर्च लाइट देता हूं, लेकिन वो जो टॉर्च लाइट है वो एग्जैक्टली लाइक कृष्णा है ना. अभी हम लोगों ने लास्ट वीक पे डिस्कस करा था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा और श्रीमद् भागवतम. कृष्णा का लिटररी इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम, ठीक है. अभी क्या है कि अच्छा, एक्चुअली लेट्स रीड द परपोर्ट एंड देन we'll discuss it. Okay, who wants to read the purport? मैं read करता हूँ. Okay. Lord Sri Krishna has his eternal dharma or abode where he eternally enjoy himself with his eternal associates and paraphernalia. And his eternal abode is a manifestation of his internal energy, whereas the material world is a manifestation of his external energy. When he descends to the material world, he displays himself with all paraphernalia in his internal potency, which is called Atma Maya. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he descends by his own potency, Atma Maya, his form, name, fame, paraphernalia, about, etc., and not therefore creation of matter. He descends to reclaim the fallen souls and to re-establish codes of religion which are directly enacted by him. Except for God, no one can establish the principle of religion. Either he or a suitable person empowered by him can dictate the course of religion. Real religion means to know God, our relation with him, and our duties in relation with him, and to know ultimately our destination after leaving this material body. The conditioned souls who are entrapped by the material energy hardly know all these principles of life. Most of them are like animals, engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. They are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity, knowledge, or salvation. They are still more blind in the present age of coral or Kali Yuga. In the Kali Yuga, the population is just a royal addition of these animals. They have nothing to do with spiritual knowledge or godly religious life. They are so blind that they cannot see anything beyond the jurisdiction of the subtle mind, intelligence, or ego, but they are very much proud of their advancement in knowledge, science, and material prosperity. They can risk their life to become a dog or hog just after leaving the present body, for they have completely lost sight of the ultimate aim of life. The personality of Godhead Sri Krishna appeared before us just a little prior to the beginning of Kali Yuga, and he returned to his eternal home practically at the commencement of Kali Yuga. While he was present, he exhibited everything by his different activities. He spoke the Bhagavad Gita specifically and eradicated all pretentious principle of religiosity. And prior to his departure from the material world, he empowered Sri Vyasadeva through Narada to compile the message of Srimad Bhagavatam, and thus both the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are like torch bearers for the blind people of this age. In other words, if man in this age of Kali wants to see the real light of life,
they must take to these two books only, and their aim of life will be fulfilled. Bhagavad Gita is a preliminary study of the Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is the summum bonum of life. Lord Sri Krishna personified. We must therefore accept Srimad Bhagavatam as the direct representation of Lord Krishna. One who can see Srimad Bhagavatam can also see Lord Sri Krishna in person. They are identical. Hare Krishna. Beautiful. What an amazing purport. And no wonder Srila Prabhupada has done so many times, he has quoted this verse, because this is like, everything that you can think of, like, हम लोगों को ये समझना है, we have to understand this this particular concept that Srimad Bhagavatam is what? क्या है Srimad Bhagavatam? So हुआ क्या, चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा, 6th क्वेश्चन था, धर्म कहाँ बोलेगा, है ना, भाई कृष्ण भगवान तो चले गए, ठीक है, अब जब धर्म है वो कहाँ शेल्टर लेगा? तो उसके आंसर में ये बता रहे हैं कि धर्म कहाँ शेल्टर लेगा? धर्म शेल्टर लेगा श्रीमद् भागवतम का, है ना। तो जब कृष्णा गए यहाँ से, तो सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज निकल गई। क्या क्या अच्छी अच्छी क्वालिटी थी? सत्य, धर्म, है ना, कीर्ति, श्री, है ना, ये सारी चीजें निकल गई भगवान के साथ, चली गई वापस, है ना। अब जब ये सारी चीजें चली गई भगवान कृष्ण के साथ, तो कलयुग में जो लोग हैं वो कैसे डिलीवर होंगे, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी। मतलब ऐसा है कि मतलब ट्रेन चली गई हमारे पास, हम लोग को जाने के लिए हमारी ट्रेन निकल गई है, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं जाने के लिए, है ना। तो भगवान ने क्या करा, एक और हम लोगों के लिए ट्रेन ऑर्गेनाइज कर दी। एक्चुअली कलयुग में श्रीमद् भागवतम इज लाइक एक्चुअली प्लेन, है ना। तो इसमें क्या है, अब क्या है, हुआ क्या कि भागवतम आई हेल्प करने के लिए, भगवान गए, भागवतम आई। क्रिश्चियनिटी में क्या, जब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गए थे यहाँ से, अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही एक चर्च में जब सरमन सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वहां पर वो ट्रिनिटी को मानते हैं, है ना, फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, है ना, 3 चीजें मानते हैं। तो फादर कौन है? गॉड। सन कौन है? जीसस क्राइस्ट। और होली स्पिरिट क्या है? जो भगवान की एनर्जी है। तो जीसस क्राइस्ट जब जा रहे थे, चले गए, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी। सब लोग बहुत परेशान थे कि जीसस क्राइस्ट चले गए, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे पास? जब मैं जाऊंगा तो होली स्पिरिट, जो मैं खुद ही होऊंगा, मैं ही, मतलब भगवान की एनर्जी होगी, वो आएगी, वो आपको सारी नॉलेज देगी, जो भी वट एवर इट इज ना। तो वहां का जो काउंटर थिंग है वो यहाँ पर ये है कि जैसे ही कृष्णा गए, कृष्णा ने क्या करा, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला ये ना कलयुग लोगों का, तो कुछ ना कुछ तो देखे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ना ऐसे ही कटोरा घुमाते रहेंगे इधर, है ना, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इनको। तो उन्होंने क्या करा, चलो ठीक है, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ना। कलयुग में लोगों के बहुत सारे फॉल्ट है, ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट है। अब देखा जाए तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमारे पास पहले से थी, कृष्णा गए तब से भागवतम थी, लेकिन हम लोगों में से मित्र प्रभु, आपने कब फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम का नाम सुना था? प्रभु जी लास्ट ईयर ही सुना था मुझे। सही में बोलूं ना तो मुझे सिर्फ भगवत गीता पता था, और इंडिया में जो होता था ना कि भागवत कथा बैठेगी, तो मुझे लगता था कि वो भगवत गीता ही चलती होगी 7 दिन में। हाँ। भागवतम तो मुझे लास्ट ईयर ही पता चला। मुझे भी नहीं पता था, एग्जैक्टली राइट, मुझे तो पता ही नहीं था श्रीमद् भागवतम। मम्मी स्टोरी सुनाती रहती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कहाँ से आ रही स्टोरीज, है ना। प्रहलाद महाराज की स्टोरी आई है, कभी नहीं पता चला, ऐसे लगा किसी पुराण में होगी ना, ऐसे कुछ दूसरे कुछ पुराण में होगी, लेकिन ये पता नहीं था कि श्रीमद् भागवतम में से ये। तो आप सोचो कि शिला प्रभुपाद हैज डन सो मच वर्क, हम लोग कभी उनको पे कर ही नहीं सकते शिला प्रभुपाद को, कि शिला प्रभुपाद नहीं होते तो ये श्रीमद् भागवतम अभी कोई नहीं पढ़ रहा होता। मैं तो खैर डेफिनेटली, मेरे को तो सोचता भी नहीं उठाने की मैं ना। शिला प्रभुपाद की वजह से हमारे पास इंग्लिश में वर्जन है, हिंदी में वर्जन है, गुजराती में वर्जन है, हर तरह के वर्जन है, इतने हजारों करोड़ों लेक्चर्स हैं वहां पर, आचार्यों की अलग अलग टिप्पणी, टीकाएं ना, ऑल दीज कमेंट्रीज फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट आचार्य हमारे पास हैं। कहाँ से आया? बिकॉज शिला प्रभुपदा, है ना, ही डिड समथिंग फॉर अस विच विल नेवर बी एबल टू पे, कभी नहीं पे कर सकते हम उनको, है ना। अब
एक वैकुंठनाथ प्रभु है ना, तो क्या हुआ कि वैकुंठनाथ प्रभु शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो वो क्या सब लोगों को खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराते थे बहुत सारे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जा रहे थे, अब उन्होंने एक लेक्चर सुना शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद कहता है यू हैव टू गेट इनिशिएटेड, ये वो काफी सारी चीजें। तो फिर वो बड़े परेशान हो गए, बोले यार मैं इतने सारे लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराता हूँ, उसमें से आधे से ज्यादा आधे लोग तो इनिशिएटेड ही नहीं है, तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने एक बार शिला प्रभुपाद को पूछा, शिला प्रभुपाद को बोला यार प्रभुपाद ये तो इनिशिएटिव नहीं है, ये तो बेचारे लटके पड़े हैं, इनका क्या होने वाला है ना। तो शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, बहुत सिंपल सा बोला, whoever is reading my books whoever is reading my books is actually initiated, है ना। सो क्या मतलब है इसका, मतलब इसकी ग्रेविटी को अगर ऐसा नहीं कि हम लोग को फिर भूल जाना चाहिए कि ना, एक सेकेंड, ऐसा नहीं कि हम लोगों को भूल जाना चाहिए कि हमें वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं इनिशिएशन नहीं लेना है, उसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, एक सेकेंड ना, इसका बैटरी चली गई। कैन यू गाइस हियर मी? मेरा ये नहीं चल रहा है, पता नहीं फॉर सम रीजन। Yes, Prabhu, we can hear you. ओके, थैंक यू माता जी। हाँ, तो क्या है कि हाँ, तो फिर उन्होंने इसका ग्रेविटी ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को इनिशिएशन नहीं लेना है, इसका मतलब ये है कि आप सोचो श्रीमद् भागवतम पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि इट इज एज इम्पोर्टेंट एज गेटिंग इनिशिएटेड फ्रॉम स्पिरिचुअल प्योर डिवोटी, इतना इंपॉर्टेंट है ना। सो ये हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कुछ भी करके भगवान शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि डोंट वरी, you will go back to Godhead because you're reading Srimad Bhagavatam. These people are reading Srimad Bhagavatam, they will go back to Godhead, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनिशिएशन नहीं लेना, इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जो शिला प्रभुपाद के डायरेक्ट कांटेक्ट में लोग थे ना। हम लोगों को वी नीड द एसोसिएशन ऑफ आवर गुरु महाराज, वी नीड द फॉर्मल दीक्षा फ्रॉम आवर गुरु महाराज, है ना, वी हैव टू गेट इट एनीवे। तो जैसे क्या होता है, जीवा, हम लोगों ने शायद काफी सारी क्लासेस पहले भी देखा था, जीवा ऊपर से गिरता है, ठीक है, जीवा ऊपर से आता है, जैसे ही यहाँ आता है तब तक वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जीवा बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन क्योंकि उसके पास एक छोटी सी डिजायर होती है कि लेट्स सी भगवान को कैसे मजा आता होगा, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड, आई वॉन्ट टू फील इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। तो उस एक डिजायर के कारण वो आता है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है क्या होता है, पूरी की पूरी इसकी जो नॉलेज होती है कवर हो जाती है पूरी की पूरी इग्नोरेंस से। कैसे? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, माया के थ्रू सारी की सारी जो उसकी आइडेंटिटी है खत्म हो जाती है, मतलब वो भूल जाता है अपनी रियल आइडेंटिटी, है ना। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर रियल आइडेंटिटी उसको पता लगे रहेगी, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो अगर उसको यही हमेशा पता रहेगा तो कैसे कोशिश करेगा एंजॉय करने की, है ना, एज ए मालिक। लेकिन उसको तो मालिक बनना है ना, एक बार दिमाग में आया तो भगवान ने इसलिए ये सारी चीजें बनाई है। तो क्या हुआ कि सपोज वो आया नीचे, है ना, अब क्या हुआ कि टाइम जो है, टाइम हम लोग ने सेकंड कैंटो में हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। टाइम पूरा ना एक आई थिंक एक पूरा चैप्टर टाइम के ऊपर था, है ना, ब्रह्मा जी टाइम के बारे में बता रहे हैं। टाइम हैज अ डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट इन मटेरियल वर्ल्ड। डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट मतलब समय क्या हर चीज को क्षीण करता है, कम करता है ना। लेकिन समय जो स्पिरिचुअल लाइफ में हर चीज को बढ़ाता है ना, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंक्रीज, ब्यूटी विल इंक्रीज, एवरीथिंग विल इंक्रीज विद टाइम। हमारे साथ क्या है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्मेटिक्स का खर्चा बढ़ता जा रहा है ना। अलग अलग तरह की क्रीम, अलग अलग तरह के शैम्पू, अलग अलग तरह की हेयर डाइज, ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वी वांट टू रिवर्स द टाइम। लेकिन टाइम का इधर पे डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट है ना। लेकिन एक चीज है जो खत्म नहीं कर सकता टाइम, समय एक चीज को खत्म नहीं कर सकता है, वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। Time can destroy everything, but time cannot destroy ignorance. So in order to destroy ignorance, the only thing that can, because ignorance is considered to be, is compared to darkness, है ना। जो हमारी जो ignorance है, अज्ञानता है, वो गहरे अंधकार से वो करे, अंधकार में बहुत घुप अंधेरा हो, एक छोटी सी माचिस
की तीली आप जलाओगे तो एकदम से चेंज लगता है, अरे वाह दिख रहा है ना। तो जो भगवान की जो भक्ति वो छोटी माचिस की तीली नहीं है, वो पूरा का पूरा सूर्य है। कृष्णा सूर्य समा माया अंधकार, जहां है कृष्णा तहा नहीं माया अधिकार। जहां पर सूरज है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता, है ना। और अगर जहां पर अंधेरा है इसका मतलब वहां पर सूरज नहीं है, सिंपल, है ना। उस जगह पर सूरज नहीं आ पा रहा है। तो क्या हुआ कि एक प्रभु जी गजेंद्र की स्टोरी बता रहे थे ना। गजेंद्र को सब लोगों को, आप लोगों को पता है गजेंद्र की स्टोरी। गजेंद्र ना जब उस मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, वो ऐसे चिल्ला रहा था कि बचाओ भगवान, कुछ भी करके बचा लो यार, आपने इतने टाइम देखो 100 साल से मैं लड़ाई कर, 100 या आई डोंट नो 1000 साल 10,000 साल तक मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ये छोड़ ही नहीं रहा है, मरने वाला हूँ, भगवान कुछ करो यार, आप क्या कर रहे हो, मतलब, है ना। भगवान से वो प्रे कर रहा था। फिर क्या हुआ एकदम से, है ना, अब एकदम से क्या हुआ कि उसकी प्रेयर में चेंज शुरू हो गया, है ना। उस जैसे ही जब वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, जब उसको समझ में आ गया अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, एकदम से क्या हुआ उसकी बत्ती जली। उसने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ सेइंग भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, उसने क्या बोला पता है, भगवान इतने जन्मों से मैं अंधकार में हूँ, अब अंदर से तो मैं अंधकार में हूं ही, बाहर से भी अंधकार में आ गया, मतलब क्योंकि पशु योनि में हूं अभी, तो पशु योनि का मतलब अज्ञानता ज्यादा है, तो मैं पशु योनि में आ गया, तो मुझे आप बचाओ, मेरे शरीर को बचाओ ना बचाओ, आई डोंट केयर, इट्स ओके, लेकिन मेरी आत्मा बचा लो भगवान। और ये सोच के उन्होंने वो कमल का फूल उठाया और वो कृष्णा को, तो वो जब कमल का फूल उठा के भगवान को दे रहा था, गजेंद्र जो दे रहे थे, वो उसमें उनको कुछ नहीं चाहिए था, मतलब उनको ये नहीं चाहिए था कि मेरे शरीर को बचा लो, कुछ कर लो, बोले ये जो अज्ञानता है ना जिसके कारण मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, मुझे बस वो दे दो यार, है ना। वो इसीलिए, और जैसे ही उन्होंने वो कमल दिया वैसे ही भगवान तुरंत आए, है ना। और क्यों, क्योंकि वो अनअलॉयड बिल्कुल फॉल्टलेसली उन्होंने उनको बुलाया था, कुछ नहीं चाहिए था उनको। बोला यार मेरा मेरा एक ही काम है, मेरे को, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं अज्ञानता में हूँ, है ना। मैंने ना अभी अपने ग्रुप में ना एक लेक्चर शेयर करा है अमरेंद्र प्रभु का, प्लीज मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर को जरूर सुने, जरूर सुने, इसको नहीं मिस करें। ये ऐसा लेक्चर है जिसको 10 बार सुनने वाला लेक्चर है। आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड anything more related to my situation right now than when I had heard this। मजा आ गया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने पेन उठाया कि नोट्स बनाऊं, फिर मेरे को लगा नोट्स नहीं, इनकी ट्रांसक्रिप्ट लिखनी चाहिए, तो पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखना है इसको, क्योंकि ऐसा है वो। तो मैंने अभी एक बार सुन लिया, आई एम गोना लिसन टू इट अगेन, तो प्लीज आप लोग उसको सुनना। उसमें बताया कि भगवान का हाथ, तो जब गजेंद्र जब परेशान हो रहा था, देन ही वाज सेइंग कि यार नहीं, ये तो भगवान का हाथ है, इसमें कोई बात नहीं, भगवान का हाथ है, कोई बात नहीं। एंड ही वाज प्रेइंग, डोंट वरी भगवान, यू पुट मी इन दिस सिचुएशन, इट्स ओके, ऑल आई वांट टू डू इज आई वांट टू नो हु आई एम, है ना। आई फॉरगॉटन, मेरी अज्ञानता दूर कर दो, बस दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता है जैसी मेरी अज्ञानता दूर होगी, मैं आई विल बी फियरलेस, निडर। वो जो लेक्चर में बता रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली ये बताया कि हाउ डू यू बिकम फियरलेस, व्हेन यू अंडरस्टैंड God's hand in everything, then you become fearless, है ना। अब क्या है, तो वो जो इग्नोरेंस की जो थिक लेयर है हमारे ऊपर है, उसको काटने का सबसे आसान तरीका क्या है, चैंटिंग, है ना। और अगर उसमें, और दूसरा क्या है, श्रीमद् भागवतम, लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम। अब क्या है कि हमारे जो लेयर्स है ना, अलग अलग लेयर्स है, जो सबसे ज्यादा बड़ी लेयर है जिसने हमें ढक रखा है इस अज्ञानता में, वो है ईगो की, है ना, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं। तो वो जो फॉल्स ईगो की लेयर है उसको काटने का सिर्फ दो तरीके, एक चैंटिंग एंड श्रीमद् भागवतम। हमारे श्रीमद् भागवतम में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ कृष्णा व्हेन ही वाज लीविंग, he appeared as श्रीमद् भागवतम, बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज कंपेयर टू, अभी इसमें वर्स में हमने देखा, कंपेयर टू सन, है ना, लैम्प इन इज सन। अब श्रीमद् भागवतम को क्या बोला है, पहले तो बोला है कि ये सन है, दूसरा क्या बोला है कि ये राइपेंड फ्रूट है, राइपेंड फ्रूट मतलब पका हुआ फल जिसमें पूरा जूस आया हुआ है, और तीसरा उसको बोला गया है मोहिनी मूर्ति। अब ये जब मैंने सुना था, मैंने कहा ये मोहिनी मूर्ति से कैसे कैसे उसको कंपेयर करा है ना, श्रीमद् भागवतम को मोहिनी मूर्ति से कैसे कंपेयर करा। अब मोहिनी का क्या काम है बताओ। मोहिनी मूर्ति का काम क्या था कि
मोहिनी मूर्ति क्या करती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरीके से, है ना, ठीक है, जो जिस तरीके, श्रीमद् भागवतम क्या करती है, श्रीमद् भागवतम इज ए पर्सन, इट्स नॉट, श्रीमद् भागवतम कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा, सो श्रीमद् भागवतम इज ए पर्सन, है ना, श्रीमद् भागवतम इज ए पर्सन एंड दिस पर्सन, श्रीमद् भागवतम जो है, इट रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द पर्सन और द कंडीशनिंग ऑफ द पर्सन। आपकी जैसी डिजायर होगी और जैसी आपकी कंडीशन होगी उसी तरीके से आपसे डील करेंगे। जैसे मोहिनी मूर्ति ने क्या करा, मोहिनी मूर्ति ने असुरों से चुरा लिया अमृत और डेमिगॉड्स को दे दिया, सुरों, है ना, देवताओं को दे दिया। तो इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम है, वो क्या करती है, श्रीमद् भागवतम, इफ समवन रीड श्रीमद् भागवतम टू गेट हैप्पियर इन लाइफ, व्हाट विल हैपन इज श्रीमद् भागवतम विल मेक दैट पर्सन हैप्पियर, बट रिमूव एंड एक लेयर लगा देगी कि हमें एसेंस नहीं, उस बंदे को एसेंस समझ में नहीं आएगा श्रीमद् भागवतम का, समझ में आया? सो क्या होगा कि वो पढ़ तो लेगा श्रीमद् भागवतम, थोड़ा खुश भी रहेगा, लेकिन जो उसका रियल डील है ना श्रीमद् भागवतम की, रियल डील क्या है कि वो रियल जो एसेंस है श्रीमद् भागवतम का क्या है कि वो हमें कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम मोहिनी मूर्ति क्यों है, क्योंकि अगर हम डिमोनियक मेंटेलिटी है हमारी, है ना, अगर हम आसुरिक प्रवृत्ति के हैं तो क्या करेगी, हमें क्या देंगे, थोड़ा सा ये ले लो, अब खुशी चाहिए ना, अरे पढ़ो, थोड़ा डिटैच रहो, खुश रहो, ठीक है डिटैच रहे, लेकिन डिटैचमेंट से भगवान के प्रेम मिलेगा, नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, सिर्फ डिटैचमेंट से। तो श्रीमद् भागवतम इज लाइक मोहिनी मूर्ति, क्या करते हैं, सब चीज चुरा लेती है, मतलब जिसको अगर अगर आपको मटेरियलिस्टिक हो तो आपको श्रीमद् भागवतम में से भी मटेरियलिस्टिक चीजें समझ में आएंगी, और जो असली रस है उसका वो नहीं आएगा समझ में, वो छुपा रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, और उस अगर हमें वो आसुरिक प्रवृत्ति छोड़ के उसके बाद हमें ये पढ़नी है, तो वी नीड टू डू चेतो दर्पणम अर्जुनम, है ना। हाँ मित्र प्रभु, क्वेश्चन। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि ये मोहिनी मूर्ति जैसा है कि जैसे जिस विचार से पढ़ोगे वही वो वाला रेसिप्रोकेशन होगा, तो फिर हमें कैसे पढ़नी चाहिए, क्या सोच के पढ़ना चाहिए? क्योंकि सबका एक होता है ना, जैसे मैं जब भी पढ़ने को बैठता हूँ मैं वही सोचता हूँ कि नहीं, मुझे पढ़नी है यानी पूरी खत्म करनी है, मुझे सारा कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, क्या क्या है मुझे सिर्फ नॉलेज लेना है। तो फिर वो फिर वहां पे लिमिट हो जाएगा ना कि क्या 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 सोच के पढ़ना चाहिए फिर। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हम लोग जो रोज जो वो वर्ष पढ़ते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो सेवया का क्या मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है हम वी आर नॉट, सेवा का क्या मतलब होता है कि हम लोग सरेंडर है उस पे, है ना। तो जब श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ें तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम इसको पढ़ने से हमारा अनर्थ दूर होगा, हमारी अज्ञानता जाएगी। जैसे वो था ना अपना गजेंद्र ने क्या बोला, भगवान कुछ नहीं चाहिए, अज्ञानता दूर कर दो। अगर आप अज्ञानता को हटाने के लिए पढ़ोगे तो भगवान उस अज्ञानता हटाएंगे आपकी, है ना। आज अभद्र जिसको कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हमारे अंदर जो अभद्र अनर्थ हैं वो निकालने के लिए। तो पढ़ने का सिर्फ यही है प्रभु, when you open, मैं तो क्या करता हूँ, when you open a श्रीमद् भागवतम, you pray कि कृष्णा you are in my hand, so I'm very fortunate that you are in my hand, please bless me that the true message of this श्रीमद् भागवतम goes into this thick head, है ना, और through this thick head soften my heart, जो अभी बहुत हार्ड हो गया है बिकॉज हम काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के कारण, प्लीज मेरी हेल्प करो। So I am reading this Bhagavatam just to purify myself so that I can come back to you. ये सोच के पढ़ो। लेकिन ऑब्वियसली मेरे को भी लगता है कि यार ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, डजेंट मैटर, यू शुड डू इट, बट मेक श्योर द भाव यही हो कि यार मेरे को अज्ञानता निकालनी है। कई लोग श्रीमद् भागवतम इसलिए पढ़ते हैं कि उनको लगता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे को अपनी परेशानियों का ना सॉल्यूशन इसमें ढूंढना है ना। अब उनको अगर ये समझ में आ जाएगा मेरी परेशानी सिर्फ अज्ञानता के कारण है ना, अगर मैं अज्ञान दूर करूंगा तो मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो क्या होगा कि वो अज्ञान जो दूर होगा उससे उनकी परेशानियां दूर होंगी, उनको ये नॉलेज मिलेगी कि देखो बीवी बच्चे सब सारे लोग हैं ना इसी जन्म के, ठीक है, इनकी केयर करो, इनको बहुत अच्छे से रखो, लेकिन कोई अगर आपको छोड़ के चला जाता है तो दुख मत मनाओ,
तो जो जिन लोगों के बच्चे और बीवी उनको छोड़ के या हस्बैंड वो छोड़ के चले गए हैं, वो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, गए गए, पिछले जन्म में कोई और मेरा हस्बैंड था, अगले जन्म में कोई और होने वाला है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या इसको करने से हमें भगवत प्रेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, भगवत प्रेम की तरफ से एक स्टेप मिलेगा हमें। हमारे साथ प्रॉफिट क्या है प्रभु? कि वी आर डूइंग चैंटिंग एज वेल एज श्रीमद् भागवतम। सो कुल मिला के आंसर इज you do chanting to purify yourself, and you read Bhagavatam just to purify, so that we understand who we really are. एक बार हमें पता चल गया, then we will have no problem. लेकिन कई लोग अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ ताकि I can tell 10 people I know about श्रीमद् भागवतम, then भगवान क्या करेंगे पता है? Then भगवान will organize something. क्या भगवान भी ऑर्गेनाइज की लोग आके बोलेंगे, अरे मित्र प्रभु क्या बात है यार, आप तो श्रीमद् भागवतम आपकी तो जबान पे टिकी रहती है श्रीमद् भागवतम, क्या बोलते हो प्रभु, है ना। फिर क्या होगा? सडनली आपने तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए शुरू करा था, और हाँ मतलब, और फिर क्या हुआ? इम्प्रेस भी हो गए लोग, बोले यार ये तो मजा आ गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ? ईगो और बढ़ गई। तो ईगो का पहले साइज ये था, अब ये हो गया है ना। तो पहले जब हीट यहाँ से भगवान की हीट हमारे अंदर तक पहुंच रही थी, वो और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर जैसे जैसे ये मोटी लेयर होती जाती है, वैसे वैसे हम कृष्णा से दूर होते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों को लगेगा कि श्रीमद् भागवतम से क्यों इंप्रेस करूं मैं, श्रीमद् भागवतम तो 100,000 लोग ही पढ़ते हैं, देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, आई शुड डू समथिंग जिससे मैं 7 बिलियन लोगों को इंप्रेस करूं। देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू टिकटॉक and they start making videos, you know. So what happens is, तो श्रीमद् भागवतम is like मोहिनी मूर्ति। जो जिस तरीके से, जिस भाव से श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, है ना, वो उतना ही आगे तक जा पाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं ये दे आर रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। इसको हम लोग अपने बलबूते पे नहीं समझ सकते, कितनी भी कोशिश, अपनी एरोडाइट स्कॉलरशिप से नहीं जीत सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। We have to take shelter of Guru. Now, question happens. Does it make sense, Mithun Prabhu? So, question happens, how to use Srimad Bhagavatam. ठीक है, हमें पता चल गया श्रीमद् भागवतम कृष्णा है, इग्नोरेंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब how to use it? तो इसके सिंपल सा तरीका है, एक सेकंड होल्ड करना है। सॉरी, दरवाजे लॉक कर दिया था मैंने। तो क्या करना है? सबसे पहले हम सुने, तो कैसे सुने? सुनना सबसे पहला स्टेप है, सुनना। दूसरा है या सुनना या पढ़ना। दूसरा स्टेप है राइटिंग डाउन मेन पॉइंट्स। ये तरीका है, राइटिंग डाउन मेन पॉइंट, 2-3 पॉइंट हर एक में से निकालो, उसको अंडरलाइन करो, है ना। मैं तो अंडरलाइन करता हूँ, कई लोग हैं वो पूरा अच्छे से नोट्स बनाते हैं, जैसे अपने जगन्नाथ राम प्रभु हैं, वो तो अपना एक वो बनाते हैं कि हर एक परपोर्ट में से क्या क्या चीजें निकल के आई, उसको और ड्रिल करते हैं वो अंदर ही अंदर, है ना। सो पहला तरीका क्या है, मतलब स्टेप्स क्या है पढ़ने श्रीमद् भागवतों को यूज करने का? सुनो, राइट डाउन द मेन पॉइंट्स, फिर उसके बाद पर्सनल स्टडी करो। सिस्टमैटिक स्टडी इज द ओनली वे, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भगवत गीता ऐसी रीड करी हुई थी पहले, है ना, और मेरे को लगा कि मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक मैंने भक्ति शास्त्री नहीं करा शुरू, तब तक मुझे, जब मैंने भक्ति शास्त्री करा तो मेरे को लगा अरे बाप रे, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था पहले। अभी भी खैर कुछ खास पता नहीं, अभी तो अब समझ में आ गया कि कितना डीप है भगवत गीता। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं वी नीड टू डू सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी मतलब देयर हैज टू बी एग्जाम्स। मेरी सबसे ज्यादा पढ़ाई एग्जाम के समय ही होती है, और मेरे को सबसे ज्यादा रियलाइजेशन एग्जाम के समय ही आती है। और हर बार एक रियलाइजेशन तो आती है, यार थोड़ा पहले पढ़ लेता तो अच्छा रहता। वो कुछ कर नहीं पाता हूँ उसका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एक रियलाइजेशन हमेशा आती है। तो सिस्टमैटिकली पढ़ना, कॉन्टेम्पलेट करना, जैसे मैंने आपको वो जो मैंने उसमें डाला है लेक्चर हैंड ऑफ गॉड, उसको सुनना यार, उसको सुनो, उसको ना जहां पर भी लगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके जस्ट थिंक अबाउट इट कि मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहा है, एंड देन इट विल हेल्प, एंड देन यू इंटरनलाइज। Lecture was very very nice. आपने सुना माता जी? Yes, Prabhuji, very very Beautiful. nice. It's amazing. It's actually like fitting to our own situation. I think everybody's situation.
but Definitely. especially to my situation, I think. माता जी मेरे को लगा कि मेरे लिए दिया है, ऐसे ही लेक्चर ही उनका ऐसा लगता है कि हमारे टेलर मेड बना है मेरे लिए। वो बहुत अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, जैसे बहुत जिस बढ़िया, एस्पेक्ट को हम सोच भी नहीं पाते कि ब्यूटीफुल, कैसे हर चीज को भगवान की मर्जी से जोड़ देना, और एक्चुअली में होती है वो, बट यही हम होती नहीं है। रियलाइज कर पाते, हम सोचते ही नहीं उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बहुत उसको डिफाइन ब्यूटीफुल। किया है। अच्छा ये प्रभु, हम, मेरे हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, मेरे मन में एक अभी डाउट था, जब आप अभी कह रहे थे कि हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़े तो हमें ये मूड होना चाहिए, या मतलब ऐसे प्रभु, जैसे मैं तो मोबाइल से भी पढ़ लेती हूँ, तो मैं कई बार ऐसी कभी कोई प्रे करके या किसी मूड से तो नहीं बैठती हूँ, मैं तो बस जैसे कई बार सेक ऑफ रीडिंग के लिए भी पढ़ लेती हूँ। कई बार स्टार्टिंग से तो स्टार्ट तो इसीलिए किया था प्रभु कि जैसे प्रभुपाद को ग्रेटिट्यूड शो करना है, कृष्णा को प्लीज करना है, but every time it's not come in the mind. So how does it how should we take it, Prabhu? How should we go for it? Ki every time should we do this before reading? We should pray. So do you, माता जी, when you pick up श्रीमद् भागवतम, whenever मतलब हाथ में या फिर मतलब फोन में या एक्चुअल श्रीमद् भागवतम, what do you do? Do you say a prayer or anything? Nothing? No prayer, Prabhu. I actually say Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and when I say Om Namo Bhagavate Vasudevaya ना 3 बार, that gives me a क्या बोलते हैं एक ट्रिगर पॉइंट कि यार भाई चेक योर मूड, आप किस मूड से पढ़ रहे हो इसको, है ना। देखो कई बार माता जी ऐसा होगा कि ना हमारे पास ना मन नहीं, जैसे मेरा कई बार मैं सुबह ना मेरा मन नहीं होता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाओ या कुछ कर लो, कुछ और कर लो, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं भगवान को फिर बोलता हूँ, भगवान देखो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, आई एम डूइंग इट जस्ट एज ड्यूटी, है ना, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम जस्ट डूइंग एज ए ड्यूटी, आई एम नॉट, and I know that I won't get much out of this today, but I want to do it as a duty, I want to do it as a discipline, so please help me. And sometimes it works कि भाई मेरे को थोड़ी देर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, और कई बार पूरा मतलब आधा घंटा निकल जाता है, मजा नहीं आता, कुछ समझ में भी नहीं आता ज्यादा, but at the end I again apologize to Srimad Bhagavatam and भगवान की, भगवान माफ कर दो, I was not paying much attention, मेरा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, and I'm in a very deep ignorance right now, so please help me ताकि I can do this better tomorrow, है ना ऐसे। So that could be our prayer, but try and do some prayer before you start. Try and do some prayer. Definitely. Because देखो एक चीज मेरे को आज ही मेरे जीजा जी से मैं बात कर रहा था, he took shelter from Jayapataka Swami Maharaj. So he was telling me कि he was telling me कि he attended a Hari Naam पे कोई seminar, and he was saying that when we say Hare Krishna Mahamantra, so ये जो मुख है, ये जो यज्ञ सामग्री होती है ना, वो है ना, और जो हमारे कान हैं वो यज्ञ है, वेदी जो होती है ना, जिसके अंदर फायर होती है, अग्नि। तो हमारे कान अग्नि है। अगर हम जैसे स्वाहा आहुति, जब स्वाहा करके आहुति डालते हैं तो कहाँ डालते हैं हम? यज्ञ में डालते हैं ना, आग में डालते हैं, यज्ञ कुंड आग। तो जो यज्ञ कुंड है वो हमारे कान है, और जो आहुति है वो हमारे मुंह से जो मंत्र निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जितने मंत्र हमारे कान में जा रहे हैं वो तो हमने आहुति सीधा कुंड में डाली है, और जो हमारे कान में नहीं जा रहे हैं, जब हम इधर देख रहे हैं कि उधर क्रिकेट का चेक कर लिया, इधर अपना वो चेक कर लिया, उधर व्हाट्सएप चेक कर लिया, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, आप सोचो कि यज्ञ सामने हो रहा है, यज्ञ कुंड सामने है, और आप साइड में फेंक रहे हो ऐसे स्वाहा स्वाहा, तो कहाँ जा रहा है? वो नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा है ना। तो इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम भी है। when you read श्रीमद् भागवतम but your consciousness is not right, what is happening is, ठीक है, इम्पैक्ट फिर भी मिलेगा because you saying the words, फिर भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन जो यज्ञ में जाता है वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा फिर भी बेनिफिट, लेकिन कम मिलेगा। So we should understand कि हमारा जो कोई भी हम काम करते हैं, it needs to be targeted, very good, very targeted. This is very nice idea, Prabhu. I think it will work also, क्योंकि मैं chanting से पहले भी every day I remember and I pray to Krishna and ask blessing from Gaura Nitai, Radharani, everybody, Prabhupada. So maybe earlier it was very very mechanical, but I can say it's not
It's not very nice now, but it has improved a lot. And early morning also, because it's early morning time, so it's also working very nicely. But I think this will, I will start with the Srimad Bhagavatam also. But most of the time, at least whenever I open in the mobile, in subconscious mind or unconscious mind, I'm just thinking that I'm just going to do it for Prabhupada. Showing gratitude. That is not bad. That is not a bad thing actually. When you're doing it as service to your Guru Maharaj, because Srila Prabhupada is Jagat Guru, yes, definitely you can do it. Mercy will definitely flow, no problem. But I will pray also, Prabhu, because I think I'm not able to go in that mood. जैसे आप कह रहे हो ना, आप करते हो and very nicely you are doing. मतलब sometimes it feel like कि बस ये वर्ड्स पढ़ लिए और ज्यादा कुछ पॉपवर्ड में भी नहीं अगर समझ में आ रहा तो आगे बढ़ते जाओ ऐसा भी आ जाता है. वो नहीं आना चाहिए. Sometimes माता जी मेरे से भी नहीं होता है, I won't lie, मेरे से भी नहीं होता है, लेकिन एक बात है कि ना once we are on this path ना, slowly and gradually जैसे जैसे हमारे अनर्था नष्ट होंगे ना, वैसे वैसे I think we will improve, है ना. बट प्रभु जी यही चीज अच्छी है ना कि हम ऐसे एसोसिएशन में फिर हम ऐसे डिस्कशन करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाते हैं, फिर से मोटिवेट करते हैं. भूल तो जाते हैं, वो चीजें मोनोटोनस हो जाती हैं, मैकेनिकल हो जाती हैं. अगेन वी हैव टू रिमाइंड, अगेन वी हैव टू रिमाइंड. दैट इज द प्रैक्टिस, आई थिंक, डिवोशनल प्रैक्टिस. That is the practice. And that's why devotee association is so powerful, because we are not perfect, है ना. We need devotee association, and we are not perfect, or Maya is very strong, we have impression from so many births, so it happens, है ना. तो एक बार क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद की मतलब शिला प्रभुपाद कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक माता जी एंटर कर रही हैं और उनके हाथ में खूब सारी शिला प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके आ रही थी. तो उनको बोला असिस्टेंट को कि जाओ माता जी को बुला के लाओ. तो माता जी को बुला के लाया. बोले अच्छा कहाँ गए थे आप? बोले प्रभुपाद मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गई थी. बोले अच्छा कहाँ पर करी? तो बोले मैं तो एयरपोर्ट पे गई थी. अच्छा कैसे कैसे लोग थे वहां पर? तो मतलब ही वाज सो क्यूरियस अबाउट दिस, एंड आई विल टेल यू व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस इज. तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत अच्छे लोग, कुछ बहुत रईस थे, कुछ ना नॉर्मल थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ टीनेजर्स थे, कुछ हेडफोन लगा के घूम रहे थे, कोई मतलब काफी सारी चीज उन्होंने बताई. शिवानंद ने वाह, और तुमने हर तरीके के लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करी? उन्होंने बोला हाँ सब तरीके के लोगों को करी. अच्छा तो क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे, है ना. तो उन्होंने बताया कि मैं ये बता रही थी कि ना इफ यू रीड दिस बुक तुम्हारे सारी लाइफ की ना प्रॉब्लम्स चली जाएंगी एंड यू विल सी द लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे. ऐसे ऐसे ना कुछ चीजें बताई. शिला प्रभुपाद कहते वेरी नाइस. एंड देन ही गोज टू अपने असिस्टेंट को, अरे कैन यू गेट मी श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, है ना. श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो बोला और माता जी को ये वाला वर्स पढ़ाया. बोले यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम यू गो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शो देम दिस वर्स, है ना, कि दिस कृष्णा हैज कम. ये वर्स क्या बता रहा है? कृष्णा हैज कम एज दिस बुक टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉडहेड. एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस श्रीमद् भागवतम. दिस इज द पावर ऑफ दिस वर्स. कौन सा वर्स है ये 1343. थैंक यू. तो ये बताया था उन्होंने. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट. और क्या क्या ये कृष्णा केम एज श्रीमद् भागवतम टू डिस्पेल दिस डार्कनेस. एग्जैक्टली ये शब्द बोले उन्होंने शिला प्रभुपाद, है ना. फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो लोग उनको बोलते थे शिला प्रभुपाद वाओ आप अमेरिका जा रहे हो. तो शिला प्रभुपाद बोलते थे मैं नहीं जा रहा हूँ अमेरिका, श्रीमद् भागवतम को अमेरिका जाना है, मैं तो सेवक की तरह उनके साथ साथ जा रहा हूँ. इमेजिन दिस इज द मूड ऑफ शिला प्रभुपाद. This is because this pure devotee understands what is the value of Srimad Bhagavatam, and that's why he was able to easily surpass everything. This was his dedication towards Srimad Bhagavatam. कहते श्रीमद् भागवतम जा रही है अमेरिका, मैं उनका असिस्टेंट बन के जा रहा हूँ. I'm going as a servant, है ना, of श्रीमद् भागवतम. And this is what श्रीमद् भागवतम means, है ना. पद्म पुराण में है ना भागवत महात्म्य करके एक सेक्शन है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, है ना. तो उसमें ना नारद मुनि भक्ति देवी जो है ना उनसे डिस्कशन कर रहे हैं. और भक्ति देवी उसमें पद्म पुराण का एक्चुअल वर्स है ये, उसमें कुछ बोला है कि भक्ति कह रही है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल लीव दिस प्लेस एंड गो टू वेस्टर्न कंट्रीज.
भक्ति देवी बोल रही है पद्म पुराण में, ठीक है। और उसका सेक्शन का नाम है भगवत महात्मा, है ना। कह रही है कि, और देखो शिला प्रभुपाद ने वही करा, टुक द श्रीमद् भागवतम यहाँ से गई और वहां गई, ऐसा मतलब नहीं कि यहाँ से छोड़ के यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब आई विल गो टू वेस्टर्न प्लेस, है ना। और शिला प्रभुपाद डिड दैट। सो शिला प्रभुपाद का जो मिशन है, इसकी ऑथेंटिसिटी हमारे काफी सारे उसमें है। अब चैतन्य चेता में तो भगवान खुद ही बोलते हैं मोर सेनापति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा एक सेनापति आएगा हु विल टेक दिस मिशन टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरी country will have streets where my holy name of the Lord will be sung in public with mridanga and kartar. और किसने करा पॉसिबल? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद is a सेनापति, है ना, भक्त सेनापति of चैतन्य महाप्रभु। So he is not an ordinary person, है ना। तो भक्ति और श्रीमद् भागवतम are very closely related, है ना। तो जो चैतन्य चरितामृत हम लोग अभी सुन रहे हैं इन द मॉर्निंग, ओजस्वी प्रभु सुनाते हैं सुबह सुबह 6:30 to 7। तो बता रहे थे कि जो चैतन्य चरितामृत के अकॉर्डिंग क्या है, श्रीमद् भागवतम इज द डायरेक्ट रसा तत्व ऑफ कृष्णा, है ना। और फिर और एक और चीज उन्होंने बताई, मतलब उन्होंने ओजस्वी प्रभु नहीं, एक लेक्चर में सुन रहा था, श्रीमद् भागवतम आप पढ़ोगे तो कहां से कहां जाती है स्टोरी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे। और उसमें श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक ऐसे ऐसे चलता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अल्टीमेटली कहां जाता है? आगे जाता है ना। वैसे ही श्रीमद् भागवतम इधर उधर इधर उधर जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहां लेके जाती है? हमें लेके जाती है भगवान के पास, प्रेम, भगवत प्रेम के ना। ओके, एक बार, अच्छा हाँ, एक और वो था, शिला प्रभुपाद एक बार सांप के उस पे बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद ऐसी ना अकेले में बैठ के हंस रहे थे, तो उनका किसी डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद आप किस बात पे हंस रहे हो? तो उन्होंने बताया, मैं अपना, मेरे को आई वॉज रिमेम्बरिंग माई प्रीवियस बर्थ एंड दैट्स व्हाई आई वॉज लाफिंग। तो उन्होंने बोला, अच्छा प्रभुपाद आप क्या थे पिछले लाइफ में? तो उन्होंने बोला, आई वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे बोला उन्होंने, आई वॉज इन ए मेडिकल फील्ड एंड but I did not do any sin. And one day I had a guru, and one day my guru showed me a snake. ये सांप जा रहा है, kill this snake. And I was killing that snake. And now I know why I am here, so that I can deliver all of you guys. You're like snakes, you know, you got snake mentality. I want to take all of you back home, back to Godhead. And that's what he was remembering, and he was laughing. And that's his caliber, like, you know, that's why he's not an ordinary person. Okay? He's not an ordinary person. तो प्रभुपाद का तो कोई बर्थ हुआ ही नहीं, वो है क्या लास्ट बर्थ उनका? उनको तो कृष्णा ने ही भेजा है। No, कृष्णा पृष्ठाय भूतले, तो कृष्णा ने ही उनको भेजा था, लेकिन पुराना जो बर्थ था उसमें भी he was doing गुरु सेवा ना, तो गुरु ने अपने हिसाब से सेवा के लिए बुलाया होगा। So these people are always, these people keep coming back. So these are नित्य सिद्ध भक्त हैं ये लोग ना भगवान की। अभी यहाँ पर जैसे शिला प्रभुपाद ने अपनी लीला समाप्त करी है, तो कहीं और चल रही है उनकी लीला। He is actually somewhere else doing the same preaching. So he is a nitya preacher, परिवेचकाचार्य है ना। So he is doing something else, and when that finishes, he'll go somewhere else. So he's always engaged in preaching. प्रभु एक चीज और पूछनी थी, मैंने कभी ऐसे पता नहीं किया कि अपने टेम्पल में जो डेली श्रीमद् भागवतम क्लास होती है ना मॉर्निंग में, तो प्रभुपाद ने ये इंट्रोड्यूस किया है शायद कुछ सैंडविच प्रोग्राम की, मॉर्निंग में भी सुननी है या इवनिंग में भी, और बीच में वो क्या है प्रभु एग्जैक्टली? और भागवतम क्लास ही क्यों होती है, भगवत गीता क्लास क्यों नहीं होती? नहीं, सुबह भागवतम क्लास से सुबह होती है, शाम को भगवत गीता क्लास होती है। शाम को भगवत गीता होती है क्योंकि श्रीमद् भागवतम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, श्रीमद् भागवतम सुबह सुबह होती है, भगवत गीता शाम को होती है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा सीरियस लोग हैं वो सुबह सुबह मंदिर में होते हैं, है ना। और जो लोग कैजुअल होते हैं वो शाम को होते हैं, मतलब जनरली, मतलब हम जब जनरलाइजिंग, ऐसा नहीं है कि शाम को कैजुअल डिवोटीज आते हैं, मेरा मतलब ये है कि जनरली स्पीकिंग, है ना, जो लोग काम खत्म हुआ चलो एक बार जाके आते हैं मंदिर, है ना, मोस्ट ऑफ द जनता शाम को आती है। हाँ, और इसीलिए भगवत गीता थोड़ा सा बेसिक है तो वो शाम को चलती है। हाँ, तो भागवतम सुबह चलती है। और जो शिला प्रभुपाद सैंडविच प्रोग्राम बता रहे थे वो क्या था कि एक्चुअली सुबह का जो प्रोग्राम है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम, उसके लिए बताते हैं कि सुबह मंगला आरती
फिर उसके बाद चैंटिंग, ठीक है, मंगला आरती, फिर मंगला आरती, फिर तुलसी आरती, मंगला आरती, तुलसी आरती, फिर उसके बाद चैंटिंग, चैंटिंग के बाद गुरु पूजा, और गुरु पूजा के बाद श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के बाद प्रसादम। इसको बोला एक पूरा प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम। दिस इज द एसेंस। समवन डज दिस, ही विल 64 अंग में से मैक्सिमम सारे के सारे भक्ति के अंग पूरे हो जाते हैं इफ समवन डज दिस एवरी सिंगल डे। तो मंगला आरती तो नहीं करते हम लोग, करनी चाहिए मंगला आरती। हाँ बिल्कुल, घर पे हाँ करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल करते हो। जैसे हम लोग पूरा करताल मृदंगा तो नहीं बजा सकते, मैं तो घंटी भी नहीं बजाता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही करता हूँ मंगला नॉर्मली। प्रभु सबसे पहले उठ के मंगला करें, फिर चैंटिंग ना, पहले मंगला करनी चाहिए। देखो एक्चुअली क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मंगला कैन हेल्प योर चैंटिंग, लेकिन अगर आप लेट उठे हो और आपके पास अगर ऑप्शन है कि मेरे या तो आई कैन ओनली डू चैंटिंग और आई कैन डू मंगला, देन यू डू चैंटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दी उठते हो, इफ यू कैन गेट अप, 10 मिनट्स लगता है मैक्सिमम मंगला में। मंगला और पूरा मंगला आरती और तुलसी आरती और नरसिम्हा आरती, तीनों में टोटल मिला के 10 मिनट लगता है ना। यू डोंट हैव टू डू पूरा एलोबरेट, बस मेक श्योर दैट दिया है, अगरबत्ती है, फूल फ्लावर्स है ना, ये सब चीजें हैं, एंड छोटा सा भगवान के लिए कुछ भोग है, एंड देन यू डू इट। धीरे धीरे पढ़ लो, डोंट डिस्टर्ब एनीवन, है ना। वो तो मॉर्निंग में करते हैं तो लॉर्ड कृष्ण को उठाएंगे, नहलाएंगे, वो सब भी तो करना ही पड़ेगा। नॉट नेसेसरीली, वो सुबह नहलाते थोड़े, नहलाते तो उनको जब दर्शन आरती होती है तब नहलाते हैं जो श्रृंगार आरती के टाइम में। अच्छा, उनको बस उठा दे और मंगला आरती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उठा दो, दूध दे दो, कुछ दे दो, ड्राई फ्रूट्स दे दो, और फिर मंगला आरती करो। और सुबह 4:30 बजे ऑलरेडी एवरीडे ऑनलाइन होता ही है। हाँ सुबह होता ही है ना ऑनलाइन। तो ये और डेफिनेटली दिया वगैरह तो चतुर्मास है, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, वी शुड बी लाइक देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस। ट्वाइस अ डे कर सकते हो तो डू ट्वाइस अ डे अगरबत्ती, और शाम को अपनी गौरा आरती भी करो, तो इट देयर इज नथिंग लाइक इट, ब्लिसफुल लाइफ, you know. Okay, we'll stop here. Any questions and comments? Okay. तो आज तो सारे क्वेश्चन मैंने ही पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में, एक चीज आपसे एक्चुअली और पूछनी थी प्रभु। जैसे कई बार प्रभु ये होता है कि कहते हैं ना हमें श्रीमद् भागवतम डेली सुननी चाहिए, तो मैं श्रीमद् भागवतम अपना मेलबर्न वाले फॉलो करी हूँ, मैं डेली सुन लेती हूँ। तो उसके अलावा प्रभु जब हमारे पास टाइम रहता है तो फिर क्या सुनना चाहिए, या कौन से लेक्चर? मैं आपको बताता हूँ। इफ यू डू दैट, मेरे पास तो बहुत इजी है। अमरेंद्र प्रभु का कोई भी नया लेक्चर आता है वो मैं सुनता हूँ, या फिर वो तो सुन लेते हैं प्रभु, वो निताय सेवनी माता जी, अमरेंद्र प्रभु, और वो क्या नाम है उनका, आनंद वृंदावन प्रभु, है ना, आनंद वृंदावन प्रभु, और मैं उनके भी सुनता हूँ ब्रज विहारी प्रभु, और मैं उनके भी सुनता हूँ एक यही 5 हैं जिनके हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है। ये इस्कॉन चौपाटी वाले प्रभु, हाँ वही। और उनका क्या नाम है, और मैं पुराने भी सुनता हूँ, ऐसे भी नए भी नहीं, मैं पुराने भी सुनता हूँ। कई बार मैं पुराने डबल 2-2 3-3 बार सुनता हूँ। शुभ विलास प्रभु सुनता हूँ, शुभ विलास प्रभु के भी आप सुनते हो, है ना। तो ये तो मटेरियल इतना है और समय कम है, ऐसा लगता है प्रभु। पर अमरेंद्र प्रभु के तो जैसे मोस्ट ऑफ सुन चुके हैं, मोस्ट ऑफ द लेक्चर। निताई सेवनी माता जी के भी सुन चुके हैं। फिर ब्रज विहारी प्रभु के जैसे मुझे कई बार मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाती, मतलब ऐसे पता नहीं कहना नहीं चाहिए। हाँ नहीं कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाते, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है किसी। अरे मैंने सुना कई बार, अच्छे भी लगे, पर कई बार में जैसे प्रभु मैसेज ही लॉस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे मुझसे। कोई बात नहीं। तो हर एक पर्सन का ना एक स्पेसिफिक मूड होता है, उसके हिसाब से उसको स्पीकर्स पसंद आते हैं, ठीक है। तो और हर किसी के कोई स्पीकर होते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, है ना। बट अब अगर हम इन लोगों के ही लेक्चर सुने, और जैसे आनंद वृंदावन प्रभु, इनके भी लेक्चर अगर हम 2-2 3-3 बार भी सुने ना, दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि हमें एक बार में ना वो नहीं है, सारी की सारी चीजें नहीं आएंगी समझ में, है ना।
या तो प्रभुपाद के भी सुन सकते हैं ना प्रभुपाद का एक लेक्चर डेली सुनना चाहिए एक्चुअली। और कई लोग हैं जिन्होंने चतुर्मास में एक वाव ले रखा है कि डेली एक पूरा लेक्चर शिला प्रभुपाद का सुनेंगे वो डेली, नो मैटर व्हाट हैपेंस, है ना। और सोचो 120 डेज में 120 डेज में उनके इतने सारे लेक्चर हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। सोचो 120 डेज में 120 लेक्चर हो जाएंगे शिला प्रभुपाद के। तो ये भी कर सकते हो। शिला प्रभुपाद को तो मैंने ना कथामृता में डाल रखा है। जैसे मेरे पास सुबह उठते ही सबसे पहले कथामृता में कोई सा भी शिला प्रभुपाद का जो लाइव है ना उसमें लगा देता हूँ। कुछ भी सुना रहे हैं मैं कहता हूँ शिला प्रभुपाद whatever you need to tell me you tell me, that's it। वो ये कथा अमृतम का क्या है? कथामृता एक ऐप है। ऐप है। हाँ। तो वो शेयर कर दीजिए आप एक हाँ, बार। मैं शेयर कर मैं भी वो डाउनलोड कर दूंगी। क्योंकि उसमें कुछ अलग लेक्चर है क्या? तो वाणी के हैं, वाणी मीडिया या कुछ और है? नहीं, हाँ, शिला प्रभुपाद के जितने भी उसमें क्या, यू कांट सिलेक्ट लेक्चर्स, तो उसमें क्या है, एक रेडियो जैसा चल रहा है। शिला प्रभुपाद के सारे लेक्चर को उन्होंने लूप में डाल रखा है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक चूज नहीं, यू प्रेस इट, देयर आर थ्री चैनल्स ऑफ शिला प्रभुपाद, कोई सा भी आप प्रेस करो पूरा शिला प्रभुपाद के लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो शेयर कर देना प्रभु, क्योंकि कई सारे ऐप के वो आ रहे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता। हाँ, नहीं, मैं भी शेयर कर देता हूँ ना। थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर प्रभु जी। हाँ जी, फॉर द रिमेम्बरेंस पार्ट। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि जब तक हम, जैसे जगन्नाथ राम प्रभु भी कहते हैं कि कोई भी डिग्री ले ली या कुछ, उससे नहीं है, कोई बोर्ड कहीं नहीं टांगना कि मैंने ये भक्ति शास्त्री कर लिया समथिंग। व्हाट वी रियलाइज एंड व्हाट वी अप्लाई, दैट इज व्हाट आवर लर्निंग इज। तो हम बुक पढ़ के या इतना हियरिंग करके और एक्चुअली अप्लाई जो कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी विल लर्न एंड व्हाट वी विल बिकम। ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई मननम बहुत जरूरी है ना। उस पे चिंतन करके एंड व्हाट यू अप्लाई, और वही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है प्रभु। डिफिकल्ट पार्ट है, हाँ, लेकिन बट दिस इज यू कैन हियर, कान पे लगा के मैं सुनती रहूं, बट एक्चुअली उसमें से मैंने क्या पिक किया एंड उससे क्या अप्लाई किया, दैट इज व्हाट, जो मेरे साथ वो चीज रहती है, व्हाट आई कनेक्ट टू, जो 2-4 पॉइंट एंड व्हाट आई कैन एक्चुअली अप्लाई। अगर वो पॉइंट्स तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं लेक्चर में से, एंड दैट इज what is how we should be hearing or learning। ब्यूटीफुल। क्योंकि अभी ना, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देर इज दिस प्रभु जी जो है ना, उन्होंने अपनी एक रियलाइजेशन शेयर करी थी। ही इज वेरी लर्नेड एंड देन ही सेड टू मी कि प्रभु, मैंने क्या करा, मेरा एक ही एम था, मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनना था, मुझे सब कुछ सुनना था, सब कुछ उन्होंने सुन डाला, सब कुछ सुन डाला। एक आप सोचो, करीब 33,000 के करीब उसमें वो हैं लेक्चर्स है। कौन सी वेबसाइट है वो, भूल गया मैं, डिजायर्ट्री, इस्कॉन डिजायर्ट्री, वो सब सुन डाले उन्होंने। फिर उन्होंने बोला, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुन तो सब लिया लेकिन मुझे याद कुछ नहीं है। And then he started making notes. So he said, what I do is I make 4 points in a lecture. 4 points, 4 या 5 points मैं लिखता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर 10 आ गए, 10 पॉइंट आ गए, तो 10 में से कौन से 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं टिक करता हूँ। फिर उस पर लेक्चर के बाद 5 मिनट बैठ के मनन करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे लेक्चर पे जाता हूँ। I don't do this क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, then I'll try again but otherwise मैं भूल जाता हूँ। But this is really good, we have to do some sort of contemplation on what we are listening। प्योरिफिकेशन तो हो ही रहा है डेफिनेटली, बट अगर हम उसको ना कॉन्सेंट्रेट कर देंगे ना, तो हमारा प्योरिफिकेशन फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट, है ना। जैसे आहुति में कान में जा रहा है लेक्चर, लेकिन उसमें हवन कुंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता नहीं। हवन कुंड का मतलब हमारे कैरेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता नहीं। और वो जब जाने लग जाएगा ना, जितना जाएगा उतना जल्दी हमारा प्योरिफिकेशन होगा, है ना। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Anyone else has anything you want to share or ask? Okay. शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम